Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the GATE previous year question. It has came in GATE 2023. This question is from engineering mechanics and subtopic you can say is collision, and in collision also there is a very good subtopic, that is oblique collision. Okay, the reason for taking this question is, no doubt this question is a good question, but there can be a small upgradation of this question, and they can ask in gate expected, you can say in gate 2027 or somewhat, because gate always used to do, he used to upgrade the question which has came in previous year, and then he used to ask again, right? So I will tell that upgradation also, but before that you should know how to solve this question, this type of questions, right? So without wasting any time, let's start this question. ओके, तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक स्पेरिकल बॉल है जिसका वेट 2 kg है, ठीक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक वेज है भाई, ठीक है, उसमें एक 2 kg का बॉल है, उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, एक हाइट हाइट भी देके रखा है आपको, डेट इज 4.9 मीटर, ऑन टू एन इमूवेबल रिजिड ब्लॉक। दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक इमूवेबल रिजिड ब्लॉक है। इसका जो डीप सेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इमूवेबल बोल दिया है आपको, ठीक है, और आपको दिख भी रहा है कि ये फिक्स्ड करके रखें, ठीक है, एज शोन इन फिगर। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अगेन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मेरा कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है, हमको इतना पढ़े रहना है कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब E इक्वल टू 1। दिस इज वन थिंग यू शुड नो, एंड अनदर थिंग ऑल्सो यू शुड नो कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है कि आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो प्रीवियसली एंगल बना था, आफ्टर कोलिजन भी वही बनेगा। बट आई विल प्रूव दिस ऑल्सो, बट सपोज इफ यू डोंट नो दिस थिंग, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, राइट? तो आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम वेक्टर? मोमेंटम वेक्टर पूछ रहा है ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब क्या है कि मोमेंटम वेक्टर मतलब एक बार मेरा बॉल स्ट्राइक हुआ ये वाला, अब ये जाहिर सी बात है कुछ भी कोलाइड करके जो भी वेलोसिटी गेन करेगा, मान के चलो ये वेलोसिटी v1, तो इसका जो कंपोनेंट होगा v1 x डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट रहेगा, y डायरेक्शन में कुछ जो भी, जैसे कि अगर ये अल्फा है, थीटा है, जो भी, वो तो वेलोसिटी वेक्टर हुआ। मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? आपको इनटू मास मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपको इतना समझ में आया? नाउ नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको दे के रखा है 9.8। अगेन आई एम टेलिंग यू this is not given as 9.81. If it would have been a NAT question, please take what the value has given by them. Don't assume 9.81. It will change the decimal places, right? I still remember there is one question in GATE 2019, 18, 19, 20. GATE 2020, there was one question in mechanical second shift. There was one question of machine design. In spur gears, there is a bending stresses in spur gear, right? In that question, the range, it was coming to be exact. I'm telling you what it was coming. It was coming 9.8 something stress, and they have given answer 10, exact 10. Believe me, if you have taken something value which is not according to them, you will get 9.8, but they have exactly given 10. People lost their 2 marks there. It is a very huge loss for the student who are preparing for GATE. Really, they know the concept, they got 9.8, but in question they have taken one value which is saying according to that value you will get definitely 10. Okay, so they have accepted this 10 only. So please don't do this type of mistakes in GATE exam. Coming back to the question, option have been rounded off to 1 decimal. Okay, आपको
ए बी सी डी करके जो भी ऑप्शन दिया है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Okay, let's start this question. अब in previous lecture, I have told you, I have actually solved one of the good question out there. In that, what was there? A wall was there, right? A projectile was hitting, and then it is going back. You have to find distance s, right? It was something at an angle, something. I am not going back to that video, but I am telling you something which I told in previous video, that when it collided with this thing. So what I have told you? I have told you कि whenever collision concept come, what you have to do is you have to do two things. One, suppose if ball is hitting in this plane, in this wedge, first you have to find is plane of impact. Second, perpendicular to plane of impact there will be line of impact. There is no use of this thing. There is use, but the most important use is of line of impact. So first we will see, it is this line. This is the plane of impact, right? This is our plane of impact. Perpendicular to plane of impact, what you will get? You will get line of impact. इतना समझ में आया? आपका कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले अगर कुछ बॉल इस साइड तक आ रहा है, then it is going this thing. You make the ball at the point of collision, then make plane of impact. ये plane of impact है, right? And perpendicular to plane of impact there will be line of impact. Now you can ask me, sir, why you are focusing on line of impact too much? Because in textbook you will see there is okay, line of impact it has given. The main reason for focusing on this line of impact is, in this line of impact only there will be your impulse j into dt, integration of j into dt. It will act. Impulse will always act on the line of impact. There will be no impulse along the plane of impact, parallel to the line, perpendicular to the line of impact. So what? So what? So what मतलब कि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट में जो इम्पल्स लग रहा है ना, वो रीजन होता है मोमेंटम चेंज करने के लिए. पैरेलल टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कि प्लेन ऑफ इम्पैक्ट है, वहां पे कोई इम्पल्स नहीं है. therefore the velocity, the momentum is conserved along the plane of impact. I hope you have understood. I will solve that question also, where you have to find the impulse given by the ball to the wedge and wedge to the ball also. That will be my next video, but that is the only upgradation gate can ask, right? In next lecture, in next what we say, in upcoming years. So लेट्स, आई होप सिर के ऊपर से ना गया हो जो भी मैं बोला, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर गया भी होगा तो मैं उसको, ठीक है? ये एंगल 30 डिग्री देके रखा है. ये स्फेरिकल बॉल है, इट इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस, ठीक है? नाउ जब ये कोलाइजन के समय का समय, ठीक है? अब दिस इज माई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्लेन ऑफ इम्पैक्ट perpendicular to this. This will be my line of impact. ठीक है? ये वाला एंगल कितना होगा जानते हो? 30 डिग्री होगा भाई. यू कैन सी दैट. ओके, नाउ ये इस वेलोसिटी को मैं v नॉट मान लूं, ठीक है? अब देखो, माई बॉल strikes to the wedge here and I found the line of impact. Now it makes velocity like this, ठीक है? मान के चलो आफ्टर कोलिजन वो बॉल का वेलोसिटी v1 है, ठीक है? इसके भी कुछ कंपोनेंट होंगे, मुझे अभी वो नहीं पता, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा अब
अभी तक आपका क्या काम था, आपको सबसे पहले काम था प्लेन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करना, जो कि वेरी इजी है। कोलिशन जहां हो रहा है, जिस प्लेन में हो रहा है उसको आप खींचेंगे, उसके परपेंडिकुलर आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट करेंगे। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नॉट, इट इज नॉट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, इट विल मेक योर आंसर इजी। जो भी प्रीवियस वेलोसिटी बिफोर कोलिशन आपका जो भी वेलोसिटी रहेगा, एंड आफ्टर कोलिशन जो भी आपका वेलोसिटी रहेगा, उसको अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और प्लेन ऑफ इम्पैक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो उस वेलोसिटी को। फॉर एग्जांपल कि अब जैसे ये मेरा वी नॉट है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा होगा कुछ, और अलोंग द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा होगा, राइट, पैरेलल टू दिस विल बी प्लेन ऑफ इम्पैक्ट में है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट में। सिमिलरली ये V1 है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा कुछ बनेगा, और अलोंग द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट इसका, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताया ये एंगल 30 है, तो यू विल गेट दिस एंगल आल्सो 30 एंड दिस एंगल विल बी आल्सो 30। तो अब ध्यान से देखो, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर collision, what is my velocity? Velocity is v naught cos 30 and this will be in negative direction. Why? क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, ये वाला डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। अगर इसके इस साइड जा रहा है तो मैं नेगेटिव लूंगा, और प्लेन ऑफ इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा। अब अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन कितना है मेरा वेलोसिटी, ये देखो ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और v1 v नॉट साइन थीटा साइन 30 इज माई अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब एक काम करते हैं अपन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना हो, तो ये अगर प्लेन ऑफ इम्पैक्ट से ये एंगल मान के चलो अल्फा बना रहा है, तो नो डाउट ये भी अल्फा होगा, राइट, कोई डाउट आपको इसमें? अगर प्लेन ऑफ इम्पैक्ट से जो भी मेरा वेलोसिटी जा रहा है बॉल का, वो अल्फा बना रहा है, राइट, तो अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट इट विल बी v1 cos अल्फा, और अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इट विल बी v1 sin अल्फा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आफ्टर कोलिशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा कितना है, इट इज v1 sin अल्फा, एंड अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट इट इज v1 cos ऑफ अल्फा। कोई डाउट यहाँ तक का? अभी तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। एक बार देख लीजिए, टिल देन आई विल ड्रिंक वाटर। ओके, अब जो मैं बढ़ाने वाला हूँ ना, वो आपके होश उड़ा देगा, मजा आएगा एक्चुअली में। मजा क्या है, ठीक है, मुझे ये बताना भाई कि मैं जैसे बताया कि जो मेरा इम्पल्स है वो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लग रहा है, देयर इज नो इम्पल्स, एक्ट नहीं हो रहा है अलोंग द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट, तो मेरा मोमेंटम वहां कंजर्व है। कैसे? देखो, अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट, अगर मैं अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो m इंटू वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, अभी मेरे को नहीं पता ये क्या है,
जो लिखा हो, प्लस इम्पल्स j इंटू डी टी जो भी अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट है, इंटू m v फाइनल। m v नॉट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल में क्या है, अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज v नॉट साइन थीटा। सिंस ये जीरो है तो क्या हुआ, मेरा मोमेंटम कंजर्व हो गया अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट। आप देखना, आपको टेक्स्ट बुक्स में हमेशा दिखेगा कि भैया अलोंग प्लेन ऑफ इम्पैक्ट आपका कोई जो भी है इक्वल कर दे रहा है। कैसे इक्वल कर रहा है, ऐसे इक्वल कर रहा है, v1 cos अल्फा। समझ रहे हो, आपको ये दिखेगा, देखना v1 sin 30 इक्वल टू v1 cos अल्फा। इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। यू विल सी डायरेक्टली दिस इक्वेशन, बट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग इट विल नेवर टेल। ये यहाँ से आ रहा है क्योंकि आपका मोमेंटम इक्वेशन क्या है, जो भी m वेलोसिटी इनिशियल प्लस जो भी इम्पल्स एक्ट कर रहा है उस समय के लिए m इंटू वी फाइनल। तो जब मैं इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट और प्लेन ऑफ इम्पैक्ट में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उस कंपोनेंट को उसमें लेता हूँ, प्लेन ऑफ इम्पैक्ट के उसमें डालता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इस प्लेन ऑफ इम्पैक्ट में तो कोई इम्पल्स ही नहीं है। दैट्स व्हाई माई जो मोमेंटम है अलोंग द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट इट इज कंजर्व्ड। तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो v1 cos अल्फा इक्वल टू v नॉट साइन 30, ठीक है। अब जो ये v नॉट है, नो डाउट इट विल बी रूट 2gh, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, तो यू विल डू दिस, यू विल गेट 4.9 आना चाहिए। कितना हो गया 96, इसका रूट कर दो, सॉरी 16, एक बार और 9.8 आ रहा है यार। ठीक है, इट इज कमिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 इंटू साइन 30, ये कितना हो गया 4.9। दिस इज v1 cos ऑफ अल्फा, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक का आपको? आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई डाउट होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं ना, हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता है क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो हमको पता है E इक्वल टू 1 होता है। E इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेज का वेलोसिटी 0 माइनस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द line of impact, along the line of impact after collision it is v1 sin alpha। एंड वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, अरे दूध उबाल के कहाँ ले जाना? हाँ हाँ क्या? हाँ ले जाऊंगा 10 ग्राउंड बजे के रूम पे। आसपास। हाँ ठीक है सॉरी। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, जो बॉल का वेलोसिटी है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना है, v नॉट cos थीटा, बट माइनस में है, राइट। इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन देना है, v1 cos 30, तो ये कटा, इक्वल टू 1 है, तो v1 sin अल्फा इक्वल टू v नॉट cos ऑफ 30। v नॉट हमको पता है 9.8, cos 30 कितना होगा 9.8 इंटू cos 30, ये आ रहा है आपका 8.48 इंटू cos 30, यू विल गेट 8.487। दिस इज v1 sin अल्फा। अगर इसको मैं 1 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, ताकि ये क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू 8.487 डिवाइडेड बाय 4.9 by 4.9, यू विल गेट √3 और अल्फा हो गया आपका 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है, डेफिनेटली 30 डिग्री होगा, प्लेन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन इम्पैक्ट परपेंडिकुलर है। तो ये जो मैं निकाला ना, ये आपको अगर पता रहता, इफ यू नो, देन डायरेक्टली आप v1 निकाल दिए रहते अभी तक। इसलिए गेट के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा पता रहना चाहिए वैल्यू। ये तो मैं आपको
अभी आपको पढ़ा रहा हूँ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट पुट दिस v1 cos 30 equal to 4.9. what you will get? v1 equal to 4.9 divided by cos 30, sorry alpha 60 आया है, I'm really sorry about that. It will be like I'm really sorry, 4.9 divided by cos of 60, you will get v1 equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप v1 निकालें और जो क्वेश्चन में पूछा है आपको, ये तो कोलिजन हुआ यहाँ पे, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुआ, और ये वाला जो आपका जो मेरा वेलोसिटी है, ये जो v1 आया है ये कैसा आया है, ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट और प्लेन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में आपको नहीं बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि व्हाट इज द मोमेंटम वेक्टर ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, बट वो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है कि ये है आई और जे के डायरेक्शन में बताने बोला है, मतलब इस कोऑर्डिनेट में। आप जो v1 निकाले हो, ये जो आप v1 निकाले हो, आप नो डाउट आप रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आप निकाले हो, नो डाउट, बट ये वाला जो वेलोसिटी आया है उसको आपको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा x और y में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे x और y में, ये थीटा है, ठीक है, ये जो बॉल है स्ट्राइक किया यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट ये ऐसा गया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे को पता है भाई v1 है, बट मेरे को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x और y डायरेक्शन में, क्योंकि वो आपको पूछा है i और j में पूछा है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे को अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता तो मैं बता देता कितना आया है, हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आया है 9.8 आया है, राइट। बट हम लोग को वैसा नहीं बोला है, वो हमको बोला है कि आप जो भी मोमेंटम वेक्टर बताओगे वो आप i और j में बताइए स्पेसिफिकली। तो अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, इस v1 को मैं रिजॉल्व कर दूंगा x और y में। तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल था, ये वाला थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो गया, सिंस e इक्वल टू 1 तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो जो भी मेरा v1 आया है ये एंगल थीटा है, और ये हो गया आपका v1 cos थीटा, और ये हो गया v1 sin थीटा, ठीक है। तो v1 आपका 9.8 है, तो j डायरेक्शन में 9.8 इंटू साइन 30 कितना है, थीटा 30 डिग्री है, तो ये हो गया 4.9, और ये होगा 9.8 इंटू कॉस 30, ये कितना हुआ आपका 8.487। अब प्रॉब्लम क्या होगा बताऊं, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर रहता वो ये भी डाल के दे दिया रहता। प्रॉब्लम है भाई, ये सच बता रहा हूँ आपको, मोमेंटम वेक्टर बोला है, वेलोसिटी वेक्टर निकाल के बता रहे हो उन लोगों को। ये होता है क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं ना, आपको m इंटू वी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको इसका आंसर आएगा। इंटू 2 कर दो, ये आपका 9.8 जे आ रहा है, और ये आपको कुछ आएगा 17 आई, ठीक है। तो आई थिंक योर आंसर विल बी, मोमेंटम वेक्टर m से आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो आपका आंसर रहेगा 17 आई प्लस 9.8 जे, ठीक है। तो योर आंसर विल बी सी, नो डाउट। अब देखिए, नाउ यहां तक तो सर ठीक था। अब आप बोल रहे हैं कि आप इसमें अपग्रेड करेंगे, गेट क्वेश्चन क्या अपग्रेड कर सकता है, डेफिनेटली गेट विल अपग्रेड दिस क्वेश्चन सम डे और सम ईयर और नॉट, आई डोंट नो, बट ही विल अपग्रेड। हाउ ही विल अपग्रेड इज, हम लोग अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो इम्पल्स है करके हम लोग वहां पे मोमेंटम कंसर्व नहीं किए, राइट। तो अब गेट क्या करेगा ना, वो आपको बोलेगा कि भैया नॉट दिस क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, वो आपको बोलेगा कि आप मुझे इम्पल्स फाइंड करके बताइए,
इस डायरेक्शन पे आप इम्पल्स फाइंड करके बताइए। जो बॉल वेज पे लगा रहा है और वेज बॉल पे जो लगा रहा है जिसके कारण इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कितना है वो आप बताइए। तो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल डू इज आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन, इट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें हमको इम्पल्स फाइंड करना रहेगा। ठीक है, आप इम्पल्स फाइंड करेंगे, देन you will come back to this question, you will find this impulse in this question. I will not find this, I have found, but I want you to involve in this type of questions यार। देखिए, I have cracked gate 8 times, right? I know what gate will ask. I'm not saying what it will ask, but how the examiner is thinking. He will literally, yeah, he will give this type of questions in upcoming years. Then you should know now how to find these things, right? So you should come, you should have some interest to find this type of things. If I have told you how to find impulse in this type of collision, then you come back, then you know that impulse is there in this plane of impact, then can I find the impulse, how much it has been act in this question, right? So in next video I will solve this question, how to find impulse when there is a collision, any collision, not elastic, any collision, how you can find the impulse along the line of impact, right? So till then, bye, study hard, okay?